مل کر خدا کے نام کی ستائش کرتے اور دعا میں وقت گزارتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ 3 روزہ دعائیہ اور شفائیہ عبادات۔ کل آپ نے بھائی کاشف کرسٹی کے وسیلے سے پاک کلام کو سنا تھا۔ کوئی چند ایک باتیں جو یاد رہ گئی ہیں، کوئی بات کوئی بھی بہن یا بھائی بتا سکتا ہے باجی شرط کے علاوہ، جو ہماری یہاں کی جو کمیٹی ہے ان کے علاوہ، جو کل کون کون یہاں پر موجود تھا؟ صرف ایک بہن تھی؟ سارے نہیں تھے کل؟ سارے ہی تھے۔ کوئی بات یاد رہی پاک کلام میں سے کل جو سکھائی پادری کرسٹی صاحب نے؟ ہاں جی، سلام مشورہ کر لیں آپس میں۔ کوئی بات نہیں یار، مجھے بتائیں کہنا جی۔ اوکے، کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی یاد تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن انکریج یہ کروں گا کہ پاک کلام کو یاد رکھیں، کیونکہ اس کو یاد نہیں رکھیں گے یہاں ہم گیت گا کر اس فیلوشپ کو انجوائے کر کے چلے جائیں گے، لیکن جو مقصد ہے آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کرنے کا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ حوالہ کون سا پڑھا گیا ہے یا کون سی ایک سندی آیت رکھی گئی ہے وہاں دیکھے بغیر؟ مال چوتھے باب یا چوتھے باب کی کون سی آیت؟ 30ویں آیت۔ اور کیا ہے وہ آیت؟ وہ اپنا ہاں جی آپ پڑھ کے سنا دیں۔ آمین۔ کون کون آج شفا کی غرض سے یہاں پر موجود ہے؟ سب؟ اوکے۔ کون کون یہاں پر اس فیلوشپ کو انجوائے کرنے آئے؟ اوکے۔ اور کون کون ہے جو پاک کلام کو سیکھنے کے لیے؟ سبھی؟ آمین۔ یہ حوالہ بہت اہم ہے اور بہت کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب کا جب بھی ہم ذکر سنتے ہیں، اعمال کی کتاب کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا کی بات ہمیں نظر آتی ہے، ان کا جو کام ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا، ان کو تیار کیا، اور جتنی بھی بہنیں اور جتنے بھی لوگ اس جماعت کا حصہ تھے انہوں نے ابتدائی کلیسیا میں دھوم مچائی، انہوں نے مسیح کے نام کو جلال دیا، اور انہوں نے مسیح کے نام کو اپنے اندر اس قدر پہن لیا کہ وہ جہاں جاتے پاک کلام کو پیش کرتے، وہ اٹھتے بیٹھتے فیلوشپ کرتے، روٹی توڑتے، دعا کرتے، رفاقت میں شریک ہوتے، تو صرف اور صرف کس کے نام کو عزت اور جلال دیتے؟ مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے کہا کہ میں اس مشن کو لے کر جو باپ نے مجھے دیا تھا، اس مشن کی تکمیل، میرا جو ٹائم پیریڈ تھا میں نے اس کو پورا کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میں مشن اب آپ کو سونپتا ہوں اور آپ نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ دعائیہ شفائیہ عبادات یہ ضروری ہیں ایک چرچ کے لیے، فیلوشپ کے لیے، لیکن سب سے ضروری کیا ہے کہ خدا کے کلام کو بانٹا جائے، خدا کی بادشاہی کا اس کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ اب میرے عزیزو، جو حوالہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا بات جو ہے اس میں مسیح جو ہے وہ نزول صعود فرماتے ہیں آسمان پر، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جا کر سب دنیا کو شاگرد بنانا، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا۔ اب دوسرا باب شروع ہو گیا ہے اور پطرس اپنے پیغام کے لیے تیار ہے، لیکن یسوع نے جانے سے پہلے کیا کہا کہ ٹھہرے رہنا جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اور اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت، لیکن جب کسی کو یاد ہے، لیکن جب روح القدس تم پر
और तुम, और फिर यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और फिर ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और इमाल की किताब हमें इन चारों बातों का बयान बताती है, इन चारों चीज़ों के बारे में बताती है कि यरूशलेम से उन्होंने शुरू किया, फिर यहूदिया में गए और फिर सामरिया में गए और फिर कहाँ पर, ज़मीन की इंतहा तक। पौलुस रसूल ने खुदा के पाक कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। पतरस रसूल ने अपना पैगाम दिया और इसराइलियों से, यहूदियों से मुखातब हुआ। ऐ इसराइलियों सुनो, ऐ यहूदियों सुनो, यीशु मसीह को जिसको तूने मसलूब किया था, वो उसने मौत पर, उसने कब्र पर फतह पाकर अब किबरिया की दाहिनी तरफ बैठ गया। हम उसके गवाह हैं। और फिर बहुत सारे लोग उस पर ईमान लाए, उसके पाक कलाम पर ईमान लेकर आए। इस सिनेरियो में जब हम पहुंचे हैं चौथे बाब की 23वीं से 31वीं आयत तक, दूसरे बाब में अपना पैगाम उसने सुनाया है, तीसरे बाब में उसने एक जन्म के लंगड़े को या एक लंगड़े शख्स को शिफा दी है, सदर अदालत में उसकी पेशी हुई है उसकी और यूहन्ना की कि ये नाम लेकर तूने आज के बाद, या तुम लोगों ने आज के बाद इबादत नहीं करनी, उसका नाम नहीं लेना, उसका प्रचार नहीं करना। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उनको क्या जवाब दिया कि हमें जरूर है कि हम आदमियों की निस्बत खुदा की बात को ज्यादा मानें। परसिक्यूशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। सदर अदालत में पतरस और यूहन्ना को बुलाया गया है, उनसे सवालात हुए हैं, उनको सजा दी गई है, उनको जेल में डाल दिया गया है। और परसिक्यूशन कोई आम बात नहीं है। अगर आपको कोई मसीह के नाम से थप्पड़ मारे, अगर आपको कोई मसीह के नाम से लाभ करे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? मुश्किल काम है ना। पतरस और यूहन्ना ने इस काम को शुरू कर दिया है। यीशु ने भी कहा था मुश्किलात आएंगी, लेकिन मेरे नाम से, मेरे पाक कलाम से और जो खुशखबरी, जो अंजीर तुम लोगों ने सुनी है, उनसे पीछे ना हटना। ये पैसेज बहुत खूबसूरत है, ये आयत बहुत खूबसूरत है। मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ मोजज़े और शिफात है। अपनी ज़ात को महदूद ना करें, क्योंकि हमारा खुदा अनलिमिटेड, लामहदूद है। वो कायनात को बनाने वाला है। बेशक मोजज़े और शिफा हमारे ईमान का हिस्सा हैं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर क्या है, खुदा की बादशाही में लोगों को शामिल करना, अंजील की बशारत का काम। और जो आज 3 बातें हम सीखेंगे वो क्या है? हमारा जो टॉपिक होगा दुआया, कुव्वत और दलेरी। क्या होगा हमारा टॉपिक? दुआया, कुव्वत और दलेरी। और उसमें हम कौन सी 3 बातें सीखेंगे? कि बिलीवर्स एक्नॉलेज गॉड इन प्रेयर। जो ईमानदार है उनको दुआ में खुदा का एतराफ़ करना चाहिए। जो 23वीं और 24वीं आयत के बारे में हम सीखेंगे। और फिर दूसरी बात हम सीखेंगे कि प्रेयर्स शुड बी गॉड सेंटर्ड। दुआ का जो मरकज़ है वो खुदा और मसीह होना चाहिए। और फिर तीसरी और आखिरी बात हम सीखेंगे कि ईमानदार को ज़्यादा दलेरी मांगनी चाहिए। बिलीवर्स शुड आस्क फॉर मोर बोल्डनेस। ये ईमानदार की जिम्मेदारी है। कौन कौन सी? दुआया, कुव्वत और दलेरी। और उसमें 3 बातें कौन कौन सी? ईमानदार को खुदा की ज़ात को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, उसकी दुआ का मरकज़ खुदा का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी बात, ईमानदार को ये बार बार मांगते रहना चाहिए। तो इसमें आज जब वो आए हैं अपने लोगों के पास, हवालात से छुटकर या जेल से छुटकर, सदर अदालत की पेशी से होकर,
परसिक्यूशन को अपनी ज़िंदगी में देखकर अपने लोगों में आए हैं, उन्होंने अपने लोगों को ये रिपोर्ट दी है कि यीशु का नाम लेने से, उसके नाम से मोजज़ात करने से, लोगों को शिफा देने से हमारे साथ ये हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जमात के साथ मिलकर खुदा के नाम की सिताइश की है, उस बुजुर्ग नाम की बुजुर्गी को अपनी ज़िंदगी में देखा है, उसकी बुजुर्गी को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, और उस जलाली काम को जो उनके वसीले से हुआ है, हैकल में एक लंगड़े को शिफा दी गई है, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया है। परसिक्यूशन जो उन पर हुई है, एजारसानी जो उन पर हुई है, उसको सेलिब्रेट किया है। उन्होंने खुदा के नाम की सिताइश की है। कहाँ से शुरू करते हैं? तू जो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है, समंदर तूने बनाए हैं, और जो कुछ समंदर के अंदर है वो भी सब तूने बनाया है। मेरे अजीजों, परसिक्यूशन को अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना इंतहाई ज़रूरी है, और ये मसीही ईमान का अकीदा होना चाहिए, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया की जब हम बात सुनते और देखते और करते हैं तो ये उनके अकीदे का हिस्सा था। वो जब भी उनको कोड़े लगाए गए, उनको जेल में डाला गया, उन्होंने सिताइश की, उन्होंने खुदा के नाम को अपनी ज़िंदगी में मुबारक कहा, उन्होंने खुदा के नाम को लोगों के सामने मुबारक कहा, उन्होंने खुदा के नाम को जब वो अपनी जमात में शामिल होते हैं खुदा के नाम की सिताइश की, उसको एक्नॉलेज किया, उसका इतराफ़ किया कि तू सबसे बड़ा है, तू हमारा बाप है, ज़मीन तेरे हाथ की कारागरी है, हम तेरे हाथ की कारागरी हैं, आसमान तूने बनाए हैं, ज़मीन तूने बनाई है, जो निज़ाम शमसी है उसको तूने बनाया है, समंदर पहाड़ सब कुछ तूने बनाया है, और हम इसके लिए तेरी सिताइश करते हैं। एक्नॉलेज करना इंतहाई ज़रूरी है। देखें, परसिक्यूशन, लान तान, लोग गालियां दे, लोग मारे, ये फर्क सिनेरियो है, लेकिन उस सिनेरियो से निकलकर या उस सिनेरियो में रहते हुए हमें किसके नाम को इज्जत और जलाल देना है? किस नाम को एक्नॉलेज करना है? मसीह के नाम को, क्योंकि वही बातें नाम है, वही कुदरत वाला नाम है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं जितने भी अंबिया हो गुजरे हैं, जितने भी लोग हो गुजरे हैं, इवन यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आए तो खुदा के नाम की सिताइश करते रहे। ईमानदार खुदा के नाम की सिताइश करते रहे, और खुदाई कलीसिया का जो खासा था या उनकी जो खसूसियत थी वो क्या थी? अमाल की किताब 2 बाब की 42वीं आयत, और वो रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफ़ाकत रखने में मशगूल रहते थे। और जो लोग उनमें शामिल होते थे, या लोग जो शिफा पाते थे, लोग जो निजात पाते थे, लोग जो अपने ईमान का इकरार करते थे, अपने गुनाहों का इकरार करते थे, वो लोग उस जमात में शामिल हो जाते थे। एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, खुदा की ज़ात का इतराफ़ करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमारा ईमान अधूरा है, इसके बगैर मसीही ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। इसलिए ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, उनका अपनी ज़िंदगी में इस बात का इकरार करना बहुत ज़रूरी है। सदर अदालत में पेशी हुई है, कायफा ने, हन्ना ने और सरदार काहनों ने उनको बुलाया है। उन्होंने कहा है कि इस नाम को लेकर आगे को काम ना करना, इस नाम से मुनादी ना करना। लेकिन उनकी दलेरी देखें, बोल्डनेस देखें, पाकरू ने उनको जो कुव्वत दी है उसको देखें। वो कहते हैं कि हमें आदमियों की कोई फिक्र नहीं है, हमें तुम्हारी भी कोई फिक्र नहीं, जो गद्दी नशीन हो, जो सरदार काहिन हो, जो बुजुर्ग हो, जो आगे लेकर चलते हो, हमें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हमें फिक्र है यीशु नाम की, हमें फिक्र है खुदा के हुक्मों की। अपनी जिंदगी में इन बातों को लेकर
चलते और आगे बढ़ते। परसिक्यूशन को रिस्पॉन्ड करना यह हर किसी का काम नहीं है, लेकिन वो शख्स दलेरी से रिस्पॉन्ड कर सकता है ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी सिचुएशन को या ऐसे सिनेरियो को जो रूह कुदस से मामूल है। दुआया और शिफाया इबादत, मोजज़े और शिफा। मोजज़े कहाँ पर मुरीद है? जब आप ईमान लेकर आते हैं। और मोजज़े का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन चीज़ें जब उनका वजूद किसी दूसरी शक्ल में होता है तो फिर मोजज़ा होता है। नामुमकिन चीज़ों को जब मुमकिन कर दिया जाता है उसका मतलब मोजज़ा। लेकिन आज पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन आज सर में दर्द होती है ना किसी को, तो वो आता है कि उसके लिए दुआ हो जाए। सर दर्द आपको पता है कि कॉन्स्टॉन खाने से ठीक हो जाती है। खुदा ने डॉक्टर्स को, खुदा ने लोगों को हिकमत दी, उन्होंने मेडिसिन बनाई हुई है। और अगर आपको याद है, अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं, अंजील को सुनते और पढ़ते हैं, 12 बरस से एक औरत जिसका खून जारी है वो गई है डॉक्टरों के पास। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उनके पास उसका इलाज नहीं है, यीशु के पास उसका इलाज है, तो तब उसके पास गई है। 38 बरस से एक बीमार है, अब वो पहुंच नहीं पाता हाउस तक। 38 बरस की उम्र है, बहुत लंबा अरसा है। अब उसको जरूरत है कि उसको शिफा मिले, हो जाता है। एक शाही नौकर जो है वो कफरनहूम से गलील में आता है। जब यीशु मसीह का उसको पता चलता है कि वो ईदे फसा यानी के हैकल में यहूदियों के साथ ईदे फसा मना करते गलील में आ गया है, और गलील में उसने एक मोजज़ा, जो पहला मोजज़ा था वो किया। इसका यूहन्ना की इंजील में जिक्र हमें मिलता है। काना गलील में यीशु की माँ ने उससे कहा, लोगों से कहा कि यीशु जैसे कहे वैसे वैसे करते जाओ। एक अच्छी मैं जो है वो पार्टी में जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको मिली। गलील में यीशु वापस आया है और कफरनहूम से एक नौकर, शाही नौकर जो है वो यीशु के पास आया, उसका बेटा मरने को है। वो कहता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तू चल, तू कहेगा तो मेरा बेटा जीता रहेगा। इम्पॉसिबल, नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाना ये यीशु का काम है। यीशु की हजूरी जिधर जिधर होती है वहाँ पर नामुमकिनात चीज़ें या नामुमकिन चीज़ें उनका वजूद मुमकिन हो जाता है। और ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मनाना, अपनी ज़िंदगी में उसका जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है। एक बेवा है, उसका बेटा जो है वो मर जाता है, उसको जिंदा किया है, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाया। सर दर्द का हल डिस्प्रीन ऐड भी आती नहीं है, कॉन्स्टॉन है। थोड़ी सी रेस्ट, अगर आप रेस्ट कर लेंगे तो सर दर्द जाती रहेगी। जो शिफा, मैं ये नहीं कह रहा कि शिफा लेना बुरी बात है, ये मसीही ईमान का अकीदा है। क्योंकि यीशु मसीह भी जब इसने दो करके लोगों को भेजा था, कहाँ पर भेजा था कि जाओ और लोगों के पास जाओ और उनको खुदा की बादशाही की तालीम, उनको खुदा की बादशाही की तालीम दो। और यीशु ने क्या कहा कि जहाँ जाओ अगर लोग तुम्हें कबूल करें उनके लिए सलाम पहुँचाओ। अगर लोग तुम्हें कबूल ना करें तो फिर क्या करो, अपने पाँव की दर्द की उधर झाड़ कर वापस आ जाओ। जहाँ भी जाओ लोगों को, लोग अगर रहम करें उनके बीमारों को शिफा देना, उन पर रहम करना और उनको खुदा की बादशाही की तालीम देना। यीशु ने जब शाही नौकर उसके पास आया तो वहाँ पर यहूदी लोग भी थे, तो यीशु ने क्या कहा उस शाही नौकर को, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में मिलता है।
یسوع نے اس کو جواب دیا کہ تم لوگ ایسے لوگ ہو جو نشان دیکھتے ہو، تم معجزے دیکھتے ہو، پھر میرے نام پر ایمان لے کر آتے ہو۔ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خدا کی ذات کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے۔ سمندر پہاڑ اس میں ہیں، شفا اس کی طرف سے جاری ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ تیرے خادم یسوع کے وسیلے سے تیرا ہاتھ ان پر بڑھے، تو ہمیں دلیری دے، اس لیے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگر تیرا ہاتھ ہم پر نہیں ہے تو معجزے اور شفا ہم سے جاری یا ہماری زندگیوں سے، ہمارے کہنے سے جاری نہیں ہو سکتی۔ بات آگے بڑھتی ہے کہ دعائیا جو زندگی ہے اس کا مرکز خدا یا مسیح ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، زبور نمبر 2 اور اس کی پہلی اور دوسری ہے، اس کو ذرا بلند آواز سے کوئی بھی پڑھنا۔ کس لیے بحثتے ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سربراہی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار دیں۔ بہت شکریہ۔ اور اگر ہم ان آیات کو ادھر پڑھیں، قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے، خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے۔ اگر آپ کو یاد ہے صلیب کا سینیریو یا وہ سارا واقعہ، وہ ساری سچویشن، جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو وہ کس کی حضوری میں اس کو بھیجا گیا؟ سب سے پہلے پلاطوس کی حضوری میں، اس کے بعد ہیرودیس اور پھر پلاطوس، پینتوس، بہت سارے ایسے لوگ جو سردار کاہن تھے ان کے پاس بھی ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اس پر سیاست کی، وہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اب زبور 2 جو ہے یا زبور 2 جو ہے اس کو روح القدس کی رہنمائی میں لکھا گیا ہے، اور شاگردوں کو وہ بات یاد ہے، اور یہاں پر انہوں نے زبور 2 کو کوٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ قومیں کیوں دھوم مچاتی ہیں، لوگ ہمیں کیوں گھسیٹتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فریسی، فقیہ، سردار کاہن ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کا مرکز کون ہے؟ یسوع۔ اس لیے وہ بار بار اپنی زندگی سے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے یہ واجب نہیں ہے، ہماری ذات سے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یا لوگوں کے کہنے پر خدا کے نام کو لینا اور خدا کی نجات کو، جس کو ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، خوشخبری کا پیغام جس کو ہم نے خود لیا ہے اور جس کو ہماری روح القدس رہنمائی کرتا ہے کہ ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں، ہم وہ نام لینے سے باز نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کا مرکز یسوع ہے، ان کی زندگی کا مرکز خدا ہے، اس لیے ان سے لوگ سے بھی ہوتے ہیں، لوگ ان سے شفا پاتے ہیں، اور ایک جنم کا نغمہ جو ہے ان سے شفا پاتا ہے، اور لوگ جو ہیں ان میں ایک دھوم مچ گئی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہیکل کے باہر روز مانگتا تھا، ہم اس کو خود دیتے تھے، آج یہ خود کھڑا ہوا ہے، اور خدا کے نام کی جو زندہ نام ہے، جو فاتح نام ہے، یسوع نام، اس کی ستائش کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینے پہلے ہم نے اس کو مصلوب کر دیا تھا، لیکن اس کی قدرت دیکھیں کہ وہ اس نے موت پر فتح پائی، اس کی قدرت دیکھیں کہ اس نے 12 رسولوں کو مقرر کیا، ان پر روح القدس بھیجا، اور روح القدس کی رہنمائی میں، اس کی قوت میں وہ لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی دلیری دیکھیے، ان کی
दुआया जिंदगी देखिए, उनकी जिंदगी का मरकज देखिए कि यीशु है, खुदा है, और वो उस नाम को लेने से बाज नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम को वो लेने से बाज नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी का मरकज कौन है? उनकी जिंदगी का मरकज कौन है? यीशु। और हम भी जो ईमानदार हैं, हम भी जो अपने आप को यीशु के शागिर्द कहते हैं, हम भी जो अपने आप को यीशु के पैरोकार कहते हैं, हमारा मरकज कौन है? हमारा मरकज अगर यीशु है तो हमारी जिंदगी से मौजज़े ज़ाहिर होने चाहिए। हमारी जिंदगी में अगर यीशु है, हमारी जिंदगी का मरकज अगर यीशु है, खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा पाक रूह है, तो हमारी जिंदगियों से चर्च में, विद इन द चर्च, शिफा को जारी होना बहुत जरूरी है। और फिर जब यीशु मरकज होगा हमारी जिंदगी का, जब बाप यानी कि खुदा मेरी और आपकी जिंदगी का मरकज होगा, तो फिर हम खुशखबरी की, अंजीर की मुनादी करने से बाज नहीं आएंगे। दुआया कुव्वत और दलेरी वो हमें सिखाती है, और दुआया कुव्वत और दलेरी पाक रूह की रहनुमाई के बगैर नहीं है। ये बात लिख लें, ये बात जहन में रख लें, इस बात को याद कर लें। दुआया कुव्वत और दलेरी रूह कुदस की रहनुमाई के बगैर नहीं आती। अगर हम रूह कुदस से मामूर हैं, और रूह कुदस से मामूर होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको गैर जुबान मिलेगी तो आप रूह कुदस से मामूर नहीं। जब से आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर लिया है, रूह कुदस आपको ईमान में मिल गए। लोगों की फिक्र करें, लोगों के लिए रहम चाहें, लोगों से मोहब्बत रखें। इससे सब जानेंगे कि हम मसीह के शागिर्द हैं। इससे सब जानेंगे कि हमारी जिंदगी का मरकज यीशु है। इससे सब जानेंगे कि हमारी जिंदगी का मरकज मेरा और आपका आसमानी बाप। और फिर अगर हम पे मुश्किल वक्त है, दुख मुसीबत है, अगर हमें लोग सताते हैं, अगर हमें लोग लानतान करते हैं, तो भी हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। अगर हमें जेल में डाल दिया जाता है, और शागिर्दों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने इस बात को अपनी जिंदगी में देखा, जाना, उन्होंने सिफारिश की है, खुदा हमदो सना के गीत गाए हैं, खुदा की मदद से राई की है। और ये तब मुमकिन है जब आपकी जिंदगी वाया जिंदगी, दिलेरी तब मुमकिन है जब आप रूह कुदस से मामूर हैं। खुदा की ज़ात को एक्नॉलेज तब कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी में रूह कुदस मौजूद है। गॉड सेंटर्ड या क्राइस्ट सेंटर्ड आप तब हो सकते हैं जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है। और आप और अपनी जिंदगी के लिए दिलेरी तब मानते हैं जब आप अपनी जिंदगी में इन सारी चीज़ों को, दुख को, मुसीबत को, एज़ारसानी को अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, इसका तजर्बा करते हैं। जाकिर जिनको डांटा गया है ये नाम ना लेना, जाकिर जिनको जेल में डाला गया है ये नाम ना लेना, जाकिरों को ये नसीहत की गई है कि जाओ आगे से ये नाम ना लेना। उन्होंने आके रिपोर्ट दी है, लेकिन उनके रिपोर्ट देने से क्या वाक़या जो है रूनुमा हुआ है कि फिर से वो खुदा की हजूरी में गए हैं, फिर से उन्होंने अपने आप को आजिज़ किया है, अपने आप को हम्बल किया है, और अपने लिए और ज़्यादा कुव्वत और अपने लिए और ज़्यादा दलेरी मांगी। और दलेरी मांगते हुए, दुआ करते हुए उन्होंने क्या कहा है, अरे बाप तू जो समंदरों का बनाने वाला है, अरे बाप तू जो दाऊद के वसीले से हम कलाम होता है, और दाऊद के वसीले से तूने एक पेशन गोई की, उसने यीशु को, बादशाहों ने यीशु को सताया, उन्होंने हमारे बारे में भी बताया कि वो ईमानदारों को भी इसी तरह से सताएंगे। लेकिन हमने हर एक जगह पर, किसी भी पॉइंट पर मसीह का नाम लेने से परहेज नहीं करना, मसीह का नाम लेने से बाज नहीं आना। पौलुस रसूल को 3 बार कैद में डाला गया है, और आप जानते हैं
पतरस को उल्टा सलीब पर लटकाया गया। यूहन्ना को उबलते हुए तेल में, गर्म तेल में, उस कड़ाह में डाल दिया गया, वो फिर जिंदा हो गया। हालेलुया। खुदा का मरकज जब हम अपनी जिंदगी या खुदा को अपनी जिंदगी का मरकज बनाते हैं तो फिर ऐसे मौजज़े जो हैं वो वजूद में आते हैं। कोई लोग आरे से चीरे गए हैं, उन्होंने कोई उफ तक नहीं की, खंजर से उनको मारा गया है, उफ तक नहीं की। जितने भी शागिर्द सिवाय यूहन्ना के सारे ही किसी न किसी तौर से एज़ार सानी और किसी न किसी तरह से उनको सजा मिली और फिर उनको कत्ल किया गया मसीह का नाम लेने से, लेकिन वो बाज ना आए। सिर्फ यूहन्ना को जब वो बार बार खुदा उसको बचाता था, मसीह उसको बचा लेता था, फिर उसको पतमस के जजीरे पर डाल दिया गया और पतमस का जजीरा वहाँ पर कोई इंसान मौजूद नहीं है। उसको ये सजा दी गई कि ये सिर्फ अकेला रहेगा, अकेला मर कब जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन खुदा के रूह की कुव्वत देखते, खुदा के रूह की जो है उसकी कुव्वत अपनी जिंदगी में या पाकलाम में जब हम देखते हैं, उसकी सूरत जो है उसको जब पाकलाम दिया गया है, मुकाशफा दिया गया है पतमस के जजीरे पर, और खुदा को जब हम अपनी जिंदगी का मरकज बनाते हैं, उसी को जब हम अपनी जिंदगी का मरकज बनाते हैं, तो खुदा फिर पतमस के जजीरे पर भी अपने लोगों से हम तमाम होता है। मुकाशफा मेरे और आपके लिए यूहन्ना भारत में वहाँ पर लिखना मेरी बहुत जरूरी है। और मैं नहीं समझता कि अगर हमें मसीह के नाम से नामकरण किया जाए तो हम लोगों से शिकायत करेंगे, लोगों से शिकवा करेंगे, उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, अब हमें ये करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन परसिक्यूशन को रिस्पॉन्ड करने का तरीका, उसकी मॉडलिंग शागिर्दों ने मेरे और आपके लिए, यानी कि नए ईमानदारों के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए एक मॉडल सेट कर दिया है। और वो मॉडल क्या है कि जब परसिक्यूशन हो तो खुदा के नाम की हमदो सिताइश, जब परसिक्यूशन हो तो अपनी जिंदगी को और दुआया जिंदगी बनाए, जब परसिक्यूशन हो तो अपनी जिंदगी को और ज्यादा तब्दीली के लिए खुदा से उसके रूप को मांगे। उन्होंने भी ऐसा ही किया है, खुदा से बात कर रहे हैं दुआ में, और पतरस इस दुआ को, यूहन्ना और जो बाकी शागिर्द हैं वो इस दुआ को लीड करते हुए दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं कि तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा। खुदा बाप से वो मुखातिब है और वो कहते हैं कि हम जिन्होंने शिफा देना शुरू किया है यीशु के नाम से, वो नाम रुकना नहीं चाहिए, लोगों में शिफा रुकनी नहीं चाहिए, लोगों में मोजज़ात होने रुकने नहीं चाहिए। इसलिए तू अपना हाथ बढ़ा और तेरे पाक आदम यीशु के नाम से मोजज़े और अजीब काम ज़रूर में आए। और ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे वो दूसरे इलाकों में गए, लोगों ने मसीह के नाम पर ईमान लेकर आए हैं, और जब वो हैकल में भी हैं तो फिर क्या होता है, वो लोगों से बात कर रहे हैं, वो सरदार काहिनों से बात कर रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों से वो बात कर रहे हैं, और बात करते करते वहाँ पर लिखा है कि ईमानदारों की तादाद कितनी हो गई है, 5,000 तादाद हो गई है ईमानदारों की। पैगाम पतरस का पहला पैगाम 3,000 पद यीशु पर ईमान लेकर आए। पतरस का दूसरा पैगाम हैकल में जब वो फरीसियों से, फकीहों से, यहूदियों से, इसराइलियों से मुखातब होकर पाक नाम करता है, तो ईमानदारों की तादाद कितनी हो गई है, 5,000। और वो लोग सारे जमा होते हैं एक जगह से एक जगह पर, और वो रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल रहते थे। और खूबसूरत बात उनकी ये थी कि क्या करते थे वो, कि वो अपनी मलकियत को बेच कर रसूलों के कदमों में जो भी उसका मिलता था, जो कुछ उसको मिलता था, वो रसूलों के कदमों में लेकर आते थे। मतलब ये कि रसूलों को पेश कर देते थे कि ये अब हमारा नहीं है, ये खुदा का है, खुदा को हमने दे दिया है, ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खर्च और इस्तेमाल किया जाए। और ऐसे ही अगर आप कहीं कमजोर पड़ते हैं, क्या आप
अपने लिए लेनी को मानते हैं, अपने लिए रूह कुदस को मानते हैं, या सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा होने के लिए खुदा से मांगते हैं, या सिर्फ शिफा को अपनी ज़िंदगी में देखने के लिए खुदा से मांगते हैं। मेरे अजीज़ों, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये पास्टर मोमिन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों को इकट्ठे करते रहें और फिर उनको कलाम सुनाते रहें। हाँ, एक वक्त के लिए उनको इकट्ठा करना ज़रूरी है, और जब 3-4 साल हो जाएं तो फिर क्या होना चाहिए, उनके साथ मिलकर इस खिदमत को आगे लेकर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि उनका बाजू बने, क्योंकि ये काम कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता। ये कलीसिया का काम है, ये चर्च का काम है कि वो अपने लोगों को, जो लोग कमज़ोर हैं ईमान में, जो लोग कमज़ोर हैं दुआ करने में, जो लोग कमज़ोर हैं रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने में, उनको हम दलेरी दें, उनको हम अपनी टीम में शामिल करें, उनके साथ मिलकर ऐसी महफिल को सजाएं, उनके साथ मिलकर दुआया ज़िंदगी को बनाएं। और ये एक लाइफ स्टाइल है, ये चंद दिनों की बात नहीं है। मसीही ईमान, मसीही दुआया ज़िंदगी और रूह कुदस से मामूल ज़िंदगी, ये लाइफ स्टाइल है। और ये लाइफ स्टाइल की मॉडलिंग हमें कहाँ मिलती है? नमाज की किताब में, शागिर्दों में और उन ईमानदारों में जो लोग जो रोज़ बरोज़ उनमें शामिल हो जाते हैं। और फिर 31वीं आयत में फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम की किल्लत, सिर्फ चंद एक बातें करके फिर इसको वाइंड अप करेंगे। 31वीं आयत आप ध्यान से सुने। अब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। 3 चीज़ें, उनकी दलेरी से दुआ करना, उनका खुदा की हजूरी में झुक जाना, अपने आप को आजिज़ करना, फिर कितनी चीज़ें जो हैं वो वक़्फ़ पज़ीर या ज़हूर में आती हैं। 3 चीज़ें। पहली बात, जिस मकान में कोई थे वो क्या हुआ? हिल गया। दूसरी बात, वो रूह कुदस से, और तीसरी बात, दलेरी से खुदा के पाक कलाम को सुनाते रहे। मेरे अजीजों, मोजज़े और शिफा होते रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन खुदा की बादशाही की तालीम को ना रोकें, अपनी ज़िंदगी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। क्योंकि मसीह ने भी कहा था कि तुम ऐसे लोग हो, तुम ऐसी कौम हो, जब तक अपनी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा नहीं देखते कुछ पर ईमान नहीं लेकर आते, जब कोई निशान नहीं देखते, जब तक कोई कुछ पर ईमान नहीं लेकर आते। ये माइंड सेट है हमारा इंसान का, इंसानी फितरत या इंसानी नेचर ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई अजीब काम नहीं देखते, हम ईमान नहीं लेकर आते। और जब वो यीशु मसीह को मसलूब किया गया था तो लोग क्या कहते थे? सिपाही क्या कहते थे? सरदार क्या कहते थे कि तू अपने आप को नीचे ले आ या इस सलीब से नीचे उतर आ तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। डाकू भी ये कहने लगा कि आप जानते हैं, ये लोग भी कहते थे कि तू नीचे उतर आ तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन यीशु भी इस बात को सिखाता रहा कि जब तक कोई अजीब काम, मौजज़ा, शिफा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं देखते, ईमान नहीं लेकर आते। मेरे अजीजों, एक बात जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ तो ये है कि ईमान और फर्माबरदारी बहुत ज़रूरी है। जब यीशु ने पहला मौजज़ा किया, उसकी माँ ने कहा कि जैसे ये कहे इसकी सुनना, उन्होंने वैसे ही किया, फर्माबरदारी। दूसरी बार जब यूहन्ना की इंजील में यीशु ने मौजज़ा किया तो कफरनहूम से वो गलील में आया है और यीशु को कहता है कि मेरे साथ चल, तो तू वहाँ पर जाएगा तो मेरा बेटा सीधा रहेगा। यीशु ने क्या कहा था कि जा तेरा बेटा सीधा। उस नौकर ने कोई बात नहीं की, बल्कि फर्माबरदारी से और ईमान से मसीह की बात को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया और अपनी राह उसने ली। रास्ते में था और उसके नौकर आगे मिले, उसने कहा कि तेरा बेटा
जीता है। उसने अपने नौकरों से पूछा कि ये किस घड़ी या किस वक्त में हुआ। उन्होंने बताया कि अच्छा इस वक्त में। उसको भी याद आया कि इस वक्त में यीशु ने मुझसे कहा था कि तेरा बेटा जीता है। फरमाबरदारी और ईमान बहुत जरूरी है। और फिर ये दोनों चीजें कब आएंगी? जब आपकी जिंदगी रूह से मामूल होगी। मोजज़े और अजीब काम कब ज़हूर में आएंगे? जब आपकी जिंदगी में फरमाबरदारी होगी, ईमान होगा और रूह कुदरत से आप लोग मामूल होंगे। अगर आप ईमान के बगैर, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ चर्च में आने से या पादी साहब जो है वो इबादत करेंगे, वो आपके लिए बरकत चाहेंगे, आपके लिए शिफा मिलेगी, ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन ऐसी शिफा 2 दिन, 2 हफ्ते या चंद दिन, चंद घंटों के बाद वो शिफा जो है वो बीमारी में पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा कि ये जो लंगड़े को हमने शिफा दी है, इस बेकारी को जो हमने शिफा दी है, ये हमने अपनी कुदरत से नहीं किया, बल्कि किसकी कुदरत से किया है? यीशु की कुदरत से किया है। बाकादम यीशु के नाम से किया है। उन्होंने अपनी वाह नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी प्रेज या सेल्फ प्रेज अपना उन्होंने लोगों के सामने नहीं चाहिए, बल्कि इस बात का इकरार किया, अपने आप को आजिज किया, अपने आप को हम्बल किया और खुदा के नाम को अपनी जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल। पादरी साहबान को देखें, लेकिन उनसे बढ़कर यीशु के नाम को देखें, जो शिफा का मंबा है, जिसका नाम लेने से मोजज़े होते हैं, जिसका नाम लेने से अजीब काम जो हैं वो ज़हूर में आते हैं। पादरी साहबान के पास भी जिसकी कुदरत है वो कौन है? यीशु। लेकिन आपका फरमाबरदार होना, आपका ईमान लेकर आना और रूह कुदस की मामूली आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। फिर मोजज़े और शिफा और अजीब नाम जो हैं वो ज़हूर में आते हैं। खुदा आपको आज के पाक कलाम के वसीले से आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और आमीन। सब सर झुक रहे, आंखें बंद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम के खातम डॉक्टर अहसन फजल साहब से दरख्वास्त करूँगा वो आगे आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने सर झुकाएं, आंखें को बंद करें। और जो लोग थोड़ा सा रास्ता बनाते जाएं, जो लोग दुआ कराना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनका शुक्र। हालेलुया, हालेलुया तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया तेरा शुक्र।